Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Plants, the Food Producers. Let's learn about leaf structure, function of leaves, photosynthesis, plants make food, some unusual plants, balance in nature. There are different kinds of grass, plants, trees, bushes and shrubs that grow in the environment. All these are necessary for the existence of life. Some plants are big, some are small, some plants are weak and some are strong. You have already learned about trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. Plants are basic source of food for all living beings. Plants are green friends. Plants clean the air and keep the environment fresh. That is why they are called the earth's lungs. देखिए आपने अपने आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखे होंगे, ग्रास, ट्रीज या बुशेस. ओके तो देखिए ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए. कुछ प्लांट्स आपको पता है बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. एक सेकंड ना, मेरा फंबल हो गया, मैं दोबारा बोल रही हूँ यहाँ से. There are different kinds of grass, plants, trees, bushes and shrubs that grow in the environment. All these are necessary for the existence of life. Some plants are big, some are small, some plants are weak and some are strong. You have already learnt about trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. Plants are basic source of food for all living beings. Plants are our green friends. Plants clean the air and keep the environment fresh. That is why they are called the earth's lungs. देखिए प्लांट्स आपने आसपास अपने देखे हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ वीक होते हैं तो कुछ स्ट्रांग होते हैं. एंड प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, राइट. प्लांट जो है बेसिक सोर्स ऑफ फूड है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड प्लांट से ही मिलता है. इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो एयर को क्लीन करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश रखते हैं, इसीलिए उन्हें अर्थ्स लंग्स भी कहा जाता है. लीफ. Most of the plants on earth are green plants. They appear green due to the presence of a green substance called chlorophyll present in their leaves. Plants can be identified by looking at their leaves. Leaves of 4 different trees are shown above. देखिए आपके जो प्लांट्स हैं जो अर्थ पे वो सारे के सारे ज़्यादातर ग्रीन होते हैं एक्चुअली. और वो आप ये ग्रीन क्यों दिखते हैं आपको? एक्चुअली एक ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल. ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, इनकी वजह से ये ग्रीन दिखते हैं. प्लांट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी लीव्स को देख के. अभी जैसे आपको ऊपर ये दिए गए हैं, ये लीव्स अलग अलग प्लांट्स के हैं. A leaf has a flat part called the leaf blade. Some leaves have a very broad leaf blade, whereas some have narrow ones. Each leaf usually has one main vein and many side veins. देखिए किसी भी लीफ में जनरली आपकी एक मेन वेन होती है और उसमें बहुत सारी साइड वेन्स भी होती हैं. Parts of a leaf. Blade. The broad flat part of the leaf is called blade. Apex. The tip of the leaf is called the leaf apex. Main vein. There is a thin tube that runs through the middle of a leaf. This is called midrib or main vein. It carries water and minerals. देखिए आपको यहाँ पे ये लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना. तो ये जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, ये फ्लैट पार्ट, इसे लीफ ब्लेड बोला जाता है. इसके बाद एपेक्स होता है. एपेक्स आपका ये जो टिप होता है, दैट इज कॉल्ड एपेक्स. एंड मेन वेन आपकी क्या होती है? ये जो बीच से आपकी निकलती है, इसे मिडरिब भी कहा जाता है. Side veins. Veins that branch out from the midrib are called side veins. These veins carry water and minerals and food to all parts of the leaf. These veins also give strength to the leaf blade. अभी जो देखिए साइड वेन्स, ये आपकी मेन वेन है जो आपकी बीच में से निकल रही है. एंड ये जो आपकी ब्रांचेस ये आउट हो रही है, ये आपकी साइड वेन्स हैं. और इनका काम क्या होता है? ये कैरी करते हैं वाटर और मिनरल्स को लीफ के सारे पार्ट्स तक. Petiole. The part that joins the leaf to the main stem is called the petiole. Petiole आपका वो पार्ट होता है लीफ का जो उसे मेन स्टेम से जोड़ता है. Stomata. The lower side of the leaf has many tiny pores called stomata. Air enters the leaf through stomata. अब स्टोमेटा के बारे में आपको पता है, ये लीफ की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो आपकी जो लीफ है उसमें एयर एंटर करती है. Do you know plants make food only when there is light at night, or when it is dark the leaves cannot make food. Plants add oxygen to the air only when they make food. Plants खाना सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके रात को या फिर जब कभी भी डार्क है तो लीव्स खाना नहीं बनाएंगे. और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन ऐड तभी करते हैं जब वो खाना बनाते हैं. फंक्शंस ऑफ लीव्स.
Leaves make food for the plants, so they are called food factories of plants. Leaves help plants breathe through stomata. Leaves give shape and color to the plant. अब लीव्स के फंक्शन क्या है? सबसे मेन फंक्शन जो है कि लीफ प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट्स का. लीव्स प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और इसके अलावा लीव्स जो हैं शेप एंड कलर देते हैं प्लांट को. Photosynthesis. The green color of leaves is due to a substance called chlorophyll. This helps the leaves to make food using air, water and sunlight. अभी आपको बताया था कि कलर जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से. इससे क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है इसकी हेल्प से फिर लीव्स जो है खाना बनाते हैं विद एयर, वाटर एंड सनलाइट. Plants take in carbon dioxide from air and water from soil. Chlorophyll traps sunlight. देखिए क्लोरोफिल का मेन जो फंक्शन होता है वो है सनलाइट को ट्रैप करना. Green leaves use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to make. फोटोसिंथेसिस आपका एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन लीव्स हैं प्लांट्स की वो खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, देयर शुड बी सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम. Leaves absorb sunlight directly. Leaves take in carbon dioxide through the stomata. Leaves use sunlight to put water and carbon dioxide together to make food. This plant food is a kind of simple sugar called glucose. When food is prepared, it is taken by the veins and the stem to all parts of the plants. Plants store extra food as starch. देखिए अब प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और उसके बाद वो लीव्स तक भेजते हैं स्टेम के थ्रू. फिर लीव्स जो है सनलाइट को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करती हैं. इसके बाद लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, फिर लीव्स सनलाइट का यूज़ करते हैं, देन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो खाना बनाते हैं. अब ये जो प्लांट फूड है एक्चुअली आपका सिंपल शुगर है जिसे बोला जाता है ग्लूकोज, और जब फूड बनता है तो ये इसको कौन लेके जाता है? वेन्स एंड देन स्टेम, फिर प्लांट के सारे पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड है उसको एज अ स्टार्च वो स्टोर कर लेते हैं. एक्टिविटी 1. दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ. ये एक्टिविटी ये शो करती है कि स्टार्च ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है. सबसे पहले टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट, पुट द लीफ इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, हीट द बीकर विद बर्नर एंड बॉयल द लीफ. Step 3. Now put the leaf in a test tube filled with alcohol. Keep the test tube in the beaker. Heat the water of the beaker. सबसे पहले आप एक ग्रीन लीफ लेंगे, इसके बाद आपको बीकर में डालना है. ये बीकर में आपने लीफ को डाला, इसमें वाटर डालना है एंड उसे बॉईल करना है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? अब आपको लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में रखना है अल्कोहल के साथ. ओके अब आपने क्या करना है? इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है एंड अगेन इस वाटर को आपने हीट करना है. व्हेन ग्रीन कलर ऑफ द लीफ is gone, remove the leaf and wash it in cold water. This process of removing color is known as bleaching. अब इसके बाद आप थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे उसका जो ग्रीन कलर है वो गायब हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग. ब्लीचिंग यानी उसके कलर को, ग्रीन कलर को रिमूव करना. Add few drops of iodine to the leaf. What do you see? The leaf turns blue black by the addition of iodine. इसके बाद इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है और उसके बाद इसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा. तो ब्लू ब्लैक कलर का मतलब क्या है? कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है. एक्टिविटी 2. टू शो दैट सनलाइट इज नीड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हमें ये शो करना है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1. टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क रूम फॉर 24 hours. Cover one of its leaves with a strip of black paper and put the plant in sunlight for few hours. Then pluck the leaf and remove the strip. Now bleach this leaf by repeating the activity 1. Boil the leaf in water, then wash this leaf with cold water and add a few drops of iodine. You will see that the uncovered portion turns blue-black. It means that this portion contains starch. You will see that the covered portion of the leaf does not turn blue-black. It means that the covered portion does not contain starch. अब आपको एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है और उसे डार्क रूम में रखना है 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स तक. इसके बाद आप इस तरह से इसकी एक लीफ लेंगे और उसको एक ब्लैक पेपर से
कवर कर देंगे ब्लैक स्ट्रिप से, इस तरह से आपने इसको कवर करनी है। देन आपने उसको सनलाइट में रखना है इस पूरे पौधे को कुछ घंटे के लिए, एंड देन अगेन आप उस जिस पे आपने स्ट्रिप लगाई थी उस आप लीफ को तोड़ेंगे, और उसके बाद ब्लीचिंग का प्रोसेस होगा जैसे आपने एक्टिविटी 1 में किया था, उसे वाटर में बॉईल करना है, देन अल्कोहल में बॉईल करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आपने जब इसकी ब्लीचिंग का प्रोसेस किया देन उसमें अगेन आपने आयरन की फ्यू ड्रॉप्स डालनी है, और कलर इस तरह से आएगा। देखिए आपने ये जो स्ट्रिप हटाई है उसके बाद डाला, देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका ब्लू ब्लैक हो गया, जबकि जो बीच वाला पोर्शन है यानी जैसे डार्क कलर के स्ट्रिप से बांधा गया था उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है जो सनलाइट में था यानी जो अनकवर्ड था उसने तो खाना बनाया, बट ये जो पार्ट जिसे हमने कवर कर दिया था उसने खाना नहीं बनाया क्योंकि वो कवर्ड था, उसे सनलाइट नहीं मिली। एक्टिविटी 3 टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये शो करना है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। टेक अ लीफ फ्रॉम अ कॉलियस प्लांट, द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज पार्टली ग्रीन। अच्छा, आप ये जो लीफ देख रहे हैं ये एक पूरी ग्रीन नहीं है, आधा ग्रीन है और आधा ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है। ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। वॉश इट इन कोल्ड वाटर, एड अ few drops of iodine. With the help of the paper outline, find out which parts of the leaf turns blue black. Okay, अब आपने इसे क्या करना है, ब्लीचिंग का प्रोसेस पहले वाटर में बॉईल करना है, देन आपने इसे बॉईल करना है अल्कोहल में, इसके बाद ठंडे पानी में वॉश करना है, देन उसमें आपने आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। अब आप देखेंगे कि जिस पार्ट में ग्रीन कलर था वो तो ब्लू ब्लैक हो गया, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या शो करता है, दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Do you know only green part of plants release oxygen? Sun is the ultimate source of energy utilized by plants. आपका जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड सन आपको तो पता ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। What happens to the food made by the leaves? The plants make food in form of simple sugar. This is used to get energy used for growth of plants. Extra food is stored in the leaves, roots, stem, fruits or seeds of plants. This extra food is eaten by us or other animals, insects, etc. अब जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसका क्या होता है, सबसे पहले उसे यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स इन सब की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और फिर इसे कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स या हम या फिर इंसेक्ट्स। जैसे देखिए सारे के सारे ये आपके क्या है, जैसे कैबेज आपका लीफ है, ऑरेंज आपका एक फ्रूट है, पीज आपका सीड है। Some unusual plants. Non-green plants are not able to make their food. They get their food from dead animals or plants. Mushrooms and molds are non-green plants. They do not have chlorophyll. They cannot make their food. They get their food from dead and decaying plant as well as animals. अब कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे आपके मशरूम एंड मोल्ड्स है, ये अपना खाना लेते हैं डेड और डीकेइंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स से। अ कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, इट हैज थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम, इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो कैक्टस प्लांट है उसमें तो लीव्स नहीं होती है, तो खाना कौन बनाएगा, एक्चुअली खाना बनाती हैं इसकी ग्रीन स्टेम, ये काफ़ी थिक और फ्लैशी होती हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहीं पे होता है। Some leaves, like those of the croton, have chlorophyll, but they appear dark red in color. This is because the red pigment present in them hides the green color. So, photosynthesis takes place in such leaves even though they do not appear green. अब एक croton plant है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसके leaves में, इसमें red color भी दिख रहा है, but actually ये red, इनमें chlorophyll होता है, but red जो pigment है आपका वो उस green color को hide कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, इनमें ग्रीन कलर है, इनमें क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। डू यू नो प्लांट फूड टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म एंड गोज फ्रॉम द लीफ टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में टर्न होता है एंड उसके बाद वो लीफ से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है। Interdependence of plants and animals. Animals and plants depend on each other in many ways. Green plants are the main producers of food. Plants give food, shelter and oxygen to animals. Animals breathe out carbon dioxide which is used by plants to make their food. Plants help to purify air. Animals also help in pollination and seed dispersal. अब देखिए प्लांट्स और एनिमल जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? ग्रीन प्लांट्स आपके मेन प्रोड्यूसर हैं फूड के, प्लांट्स फूड, शेल्टर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स बदले में क्या देते हैं प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड।
प्लांट्स एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं, इसी तरह से एनिमल जो हैं वो पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. Balance in nature. There is a balance in nature between the plants and animals. If number of animals increases, we may not have enough plants to feed them. If we have more plants than animals, then carbon dioxide gas may become less. The interdependence of plants and animals is called food chain. Directly or indirectly, animals depend on plants. अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक बैलेंस बनाए रखते हैं नेचर में. अगर एनिमल्स ज़्यादा हो गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को खाएंगे, राइट. और अगर हमारे पास ज़्यादा प्लांट्स हो गए एनिमल्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसे बोलते हैं फूड चेन. और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. Let's remember, leaves are called the food factories of a plant. Plants take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through stomata. Plants make their food in the form of sugar or glucose. Leaves cannot make food without chlorophyll and sunlight. Animals and plants depend on each other for their survival. Leaves को plants का food factory कहा जाता है. Plants carbon dioxide लेते हैं और oxygen give out करते हैं stomata के through. Plants अपना खाना बनाते हैं sugar या फिर glucose की form में. लीफ अपना खाना नहीं बना सकते बिना क्लोरोफिल और सनलाइट के. और एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.